Remember, for those saying the issue is being politicized, we are a democracy. Politicizing an issue is required, it's necessary. But in the middle of all that political noise, the facts must be foregrounded, and that's where the media comes in. And I'm happy to say India Today is the only channel, the only network that is bringing you pure facts, unadulterated, because we were the ones who put this story in the spotlight. In a big move now, the government has cancelled the UGC NET, the NET that was conducted on June the 18th. Not NEET, but NET. That has been scrapped because the government sensed that there was some kind of dirt in the examination process. The government said it has cancelled the National Eligibility Test, or UGC NET, as the integrity of the examination may have been compromised. The UGC, or Universities Grants Commission, received inputs from the National Cyber Crime Threat Analytics Unit, which indicated a possible breakdown in the integrity of the process. Well, after the UGC NET exam of both shifts on June 18th, the Ministry of Education and the Ministry of Home Affairs came into action, and the concerned agencies started their work. The government has ordered a CBI probe into the examination, which is conducted for aspiring assistant professors and those seeking junior research fellowships. On the other hand, all opposition parties are targeting the Modi 3.0 government, saying that the Sarkar is a paper leak Sarkar. The Trinamool has termed the compromise an education emergency, and the Aam Aadmi Party has blamed the centre for playing with the future of youth. आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी 2019 से काम कर रही है। इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। फर्स्ट गांव का है, विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. कई बार आप input लेते हैं and then you change the pattern and then the system, अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. 19 जून को UGC को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुझे ऑलमोस्ट साल भर हो गए हैं। बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये जो 18 जून को पेपर हुआ है उसमें, क्योंकि हम साल भर से मेहनत करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो एक अंदर से विश्वास आ ही जाता है कि हमारा फाइनली होने ही वाला है। बहुत उम्मीद थी, और जब कल रात में नोटिस मिली हमें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, नोटिस आई है कि ऐसा कुछ भी साइबर कुछ भी ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है मेंटली भी और फिजिकली भी इस चीज़ को। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं बहुत उम्मीद से आते हैं, और जब इसका परिणाम निकलता है तो बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली साल भर मेहनत किए हैं और अब 18 जून को पेपर दे दिया, तो नाउ इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट। जब यही होना था तो इससे अच्छा हम घर में बैठ के कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या जैसे सब कोई ना कोई 24 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, उनमें से हर कोई सीरियस नहीं होता। लाइक वी आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट एग्जाम्स एंड स्टडीज। तो उनके जैसे हम भी जस्ट बैठ के दे दिए होते कि चलो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। अब लग रहा है यही अप्रोच सही होती कहीं ना कहीं। एग्ज़ाम कैंसिल होती तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, गवर्नमेंट से भी और खुद से भी, कि इस बार तो निकल ही नहीं वाला था और अब क्या हो गया। कल रात को ही मुझे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है और माइट बी ये फिर से रिकंडक्ट की जाएगी। बट इसकी प्रिपरेशन हम 1 साल से कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मास्टर्स आप शुरू करते हो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मास्टर्स के बिगनिंग में ही अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने मिडल ऑफ मास्टर्स में सेम्स 2 में भी अप्लाई किया था। तो मैंने दोनों बार ही कंप्यूटर बेस दिया था, तो उसमें मेरा निकलने में बस 10-15 मार्क्स से ही रह रहा था। और इस बार मैंने पेन पेपर दिया था तो 60-40 रेशियो चल रहा था कि इस बार हो ही जाएगा। बट कल जब ये न्यूज़ आई तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा।
बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए हम लोग। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हुए? कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हाँ, आप कह रहे हो केंद्र में भी इस तरह का जो कुछ है, मैं ये मानता हूँ कि इस मानसिकता के जो भी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा कोई नाम नहीं ले। मैं तो कहूँ कि इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता है। और चाहे केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य सरकारें हो, इसके ऊपर क्योंकि जो भी दोषी होता है उसको बख्शना नहीं चाहिए। और ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कड़ा से कड़ा फैसला लेने के लिए मोदी जी कभी इसके ऊपर कोई रियायत नहीं बरते हैं और कड़ाई से वो इसकी पालना कराते हैं। तो सिस्टम ठीक कौन करेगा? मोदी जी ठीक करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ठीक करेंगे? सिस्टम कोई बराक ओबामा और बाइडेन का थोड़ी है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का सिस्टम है। तो इस्तीफा देके घर पे बैठे मंत्री कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं माँ बाप। कल्पना है इन लोगों को जरा सी भी उस बात का दुख या उस तकलीफ है? ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? तो सरकार यूजीसी तक की परीक्षा नहीं करा सकती जिसमें भविष्य, देश का भविष्य छुपा हुआ है। नीट की परीक्षा नहीं करा सकती जिसमें देश के भविष्य के कर्णधार डॉक्टर छुपे हुए हैं। ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं का जो भविष्य है, हाँ, जो संकट में है, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे और हो, सिर्फ रेडियो पे परीक्षा पे चर्चा करने से युवाओं का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। बात करिए ना, बात करने से क्यों आप कतराते हैं? पूरे देश में एक प्रकार से जो कंफ्यूजन हुआ है युवाओं के भविष्य के बारे में, उस बारे में अगर प्रधानमंत्री से हम सवाल नहीं पूछेंगे तो किनसे सवाल पूछे? परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। भाजपा की सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है। कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा सिटिंग जज से जांच